Good morning, everybody. I would like to thank Apex Group for giving me this opportunity to talk to you on something which is very relevant and important in the dialysis population. So, we have seen many times our patients getting hospitalized repeatedly, and it can be quite a burden for the patient in terms of finances as well. So, patients take so much thought in deciding where to dialyze depending on the price of the dialysis. But when you compare to the cost of the hospitalization, actually it has got a very small role then. So I tell my patients that you should dialyze at a good center because it can help you avoid hospitalization and the cost gets offset. Also at the same time, doing thrice a week dialysis definitely reduces the number of hospitalizations, and again the cost gets offset with that. So, however, still there are other reasons why patients keep getting hospitalized, and we should be looking into it. So we have seen many times a new patient comes to us, starts dialysis with us. He's a diabetic with hypertension, starting dialysis now, thrice a week. Why a temporary catheter to start with? Because very few actually start with a fistula in our country. He develops unresponsiveness on dialysis after 1 week. And we know it's hypoglycemia. So, and gets admitted. One of the common reason is that once we start dialysis for a patient, the diabetic medicines need to be adjusted, has to be planned according to the dialysis, and also the patient's feeding habits change. So we tend to ignore that as a protocol. So I think we should have a protocol of adjusting dialysis, diabetic medicines for the patients in the first week. Otherwise, they can land up with hypoglycemia very commonly. Similarly, this patient was doing well on dialysis and 2 weeks later again develops fever, and this we know can be due to a catheter because after 3 or 4 weeks, many times a temporary catheter can land up with infection. That's why it becomes very important to emphasize to the patient to get a fistula done earlier so that these admissions can be avoided. Sometimes these patients develop breathlessness on arrival to a unit within 1.5 months. So this is very important. When the patient starts dialysis with us, they are usually overloaded. They are usually uremic. They don't eat well. So within the first 2 to 3 weeks, all these things get corrected. The fluid gets corrected, the appetite improves, they start eating well. So it becomes very important that in the first 1 month, 6 weeks, every week you carefully assess the patient and keep on adjusting the dry weight. Otherwise, the repeated breathlessness because of the dry weight change or repeated hypotension because of the dry weight change also leads to multiple admissions. So these are the scenarios in the first 1.5 month which lead to admissions, and we need to take care of that. देन हमारे पास ऐसे भी बहुत पेशेंट्स हैं जो 2-3 साल से डायलिसिस कर रहे हैं. इनमें भी बहुत वजह होती है कि वो रिपीटेडली एडमिट होते हैं, जैसे उनको बीच बीच में हाइपोटेंशन होता है. तो ये पेशेंट फ्लूइड रिमूवल टॉलरेट नहीं कर रहे. तो आप देख रहे हैं कि ये पेशेंट का ड्राई वेट बराबर है, ये पेशेंट का वेट गेन बराबर है, बट फिर भी ये बार बार हाइपोटेंशन में जा रहा है. लुक फॉर एनी अंडरलाइंग कार्डियक प्रॉब्लम. कई बार ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट डेवलप्स एन इंसिपिएंट कार्डियक प्रॉब्लम जो हमें पता नहीं चलता. ये सटल वे है पिकअप करने को कि इसको कुछ अंडरलाइंग कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप हुआ है क्या. सो इसका कार्डियक प्रॉब्लम अगर हम टैकल करते, जैसे मैंने कई बार देखा है और पेशेंट को काउंसलिंग किया है कि जनरली हम बोलते हैं 60-70% ब्लॉकेज है समझो, तो शायद एंजियोप्लास्टी का ज़रूरत नहीं भी है. बट डायलिसिस पेशेंट्स जब डायलिसिस पे आते हैं 3-4 किलो वेट गेन लेके और हम निकालते हैं, तो उनके ऊपर एक ये स्ट्रेस टेस्ट जैसा बिहेवियर होता है. द हार्ट इज एट स्ट्रेस व्हेन यू आर रिमूविंग सो मच वाटर. तो ऐसे पेशेंट्स को शायद जल्दी एंजियोप्लास्टी का जरूरत है, और वो हम टैकल करते हैं तो हम कई बार देखते हैं पेशेंट डज वेल. तो जो कन्वेंशनल एंजियोप्लास्टी का डिसीजंस होता है डायलिसिस पेशेंट्स में ज़रूरी नहीं है वही फॉलो करना चाहिए. इसके लिए ये भी ध्यान में रखना चाहिए. उसी तरह कई बार पेशेंट है अच्छा चल रहा है डायलिसिस पे, उसको रूटीन इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया और 1-2 दिन एडमिट था, हिज एपेटाइट चेंज. ये पेशेंट बाद में जब वो डायलिसिस पे आता है तो कभी कभी बार बार ब्रेथलेस होके आता है. इसकी वजह ये है कि ड्यूरिंग हिज इलनेस उसका खुद का वेट जो ड्राई वेट है आधा 1 किलो से कम हो गया, लेकिन हम उसको वही वेट पे रख रहे हैं जो पहले था, हमने एडजस्ट नहीं किया है. तो ये पेशेंट अभी जो उसका ड्राई वेट है उसके लिए ज़्यादा है, तो वो बार बार फ्लूइड ओवरलोड लेके आ रहा है. तो इसलिए हमें एवरी टाइम जब पेशेंट सिक होता है, कहाँ एडमिट होता है और यूनिट में वापस आता है, तो उसका ड्राई वेट असेसमेंट फिर से करना चाहिए कि कौन सा बराबर है. बिकॉज ये पेशेंट आधा 1 किलो भी अगर एक्स्ट्रा लेके जा रहा है तो बार बार वो ब्रेथलेस होके एडमिट भी हो सकता है.
उसी तरह जब कोई पेशेंट अच्छा कर रहा है डायलिसिस पे 3-4 महीना, तो भी उसका ड्राई वेट बराबर से असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम जूना वेट के हिसाब से निकालेंगे तो ये पेशेंट बार बार हाइपोटेंशन में जाएगा, क्योंकि उसका खुद का वेट अच्छा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ वेल-बीइंग। सो ये कुछ सिनेरियो है जो हम देखते हैं रेगुलरली, आप भी नोटिस कर रहे हैं यूनिट में, कि जिसकी वजह से रिपीटेडली पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। जो डायलिसिस पे पेशेंट्स है उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी होती है, तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन का वजह वो भी हो सकता है और जिसकी वजह से वो एडमिट हो रहे हैं। कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन, इसलिए डायलिसिस पेशेंट्स में एडमिशन बार बार होती है और सेम वजह की, सेम कॉज की वजह से भी बार बार होती है, और इसलिए हमें आइडेंटिफाई करके हर एक वजह को जितना ऑप्टिमाइज कर सके उसको करना चाहिए। हाउएवर इन सब में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज और इन्फेक्शन ये बहुत कॉमन कॉजेस है जिसकी वजह से रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन होती है। और यही नहीं, ऑलमोस्ट 25 से 30% लोगों में एक महीने के अंदर रिपीट हॉस्पिटलाइजेशन होता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पेशेंट्स जब डिस्चार्ज होकर आते हैं द फर्स्ट 1 मंथ इन पर निगरानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इनमें रीएडमिशन उसी वजह से होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, and mortality is roughly about 10% in this segment of patients. अक्सर डायलिसिस पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड डेटा अगर देखेंगे तो साल में लगभग 2 बार से 3 बार एडमिट होते रहते हैं, अलग अलग वजह से जो हमने अभी डिस्कस किए, और लगभग 11 से 12 दिन हॉस्पिटलाइजेशन में जाता है। तो ये जो खर्चा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है डायलिसिस पेशेंट के लिए। इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 1-2 महीने का डायलिसिस का खर्चा। सो अगर हम उनको इसमें हेल्प करें और इसका रेट कम करें और इसका इंसिडेंस कम करें तो हम पेशेंट्स को काफ़ी हेल्प कर सकेंगे। जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट 25% पेशेंट्स को 2 से 3 एडमिशन लगता है। सो ये पेशेंट्स, हर डायलिसिस यूनिट का पेशेंट फाइल पे जो रिस्क फैक्टर्स है फॉर हॉस्पिटलाइजेशन अगर हम लिख देते हैं और हर बार जब पेशेंट आता है उसका अवेयरनेस हमें है और हम उस तरह से उनको मॉनिटर करते हैं, तो हम ये हॉस्पिटलाइजेशन कम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चार्ट है, काम का नहीं है। बेसिकली कौन से कॉजेज है फॉर एडमिशन दिया है, तो इसमें वैस्कुलर सर्जरी के लिए पेशेंट एडमिट होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, तो ये बहुत सारे कॉजेज है, बट मेनली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और इन्फेक्शन। ये रिपीटेड एडमिशन की वजह कुछ हम डिस्कस करेंगे। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, ये पेशेंट बार बार ब्रेथलेस होकर एडमिट होता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया, इसलिए इनमें वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है, उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। हम शुरू में जब पेशेंट आता है तो कई बार वैक्सीनेट बराबर करते हैं, लेकिन एनुअली फ्लू वैक्सीन या निमोनिया का वैक्सीन जो 5 साल बाद रिपीट करना है उस पर शायद ध्यान कम रह जाता है जब पेशेंट इतने साल से डायलिसिस में आता है। उस पर ध्यान रखना चाहिए और करना चाहिए। अनीमिया बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है फॉर मॉर्टेलिटी ऑल्सो, फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ऑल्सो, फॉर फेलियर ऑल्सो। और अनीमिया एक सिंपल ट्रीटमेंट का पॉसिबिलिटी है, तो क्यों हम किसी भी पेशेंट को अनीमिया झेलने दें। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हीमोग्लोबिन टारगेट्स हर महीने चेक करके अचीव करते रहें। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अगेन ये भी एक ट्रीटेबल कॉज है। हम उसका फ्लूइड स्टेटस एडजस्ट करके, सॉल्ट इनटेक एडजस्ट करके, मेडिकेशन एडजस्ट करके आसानी से उसको नीचे ला सकते हैं। तो ये डेफिनेटली जैसे ही आपको डायलिसिस के वक्त दिख रहा है कि पेशेंट हर वक्त हाइपरटेंसिव है, नेफ्रोलॉजिस्ट के ध्यान में लाइए और इमीडिएटली उसको करेक्ट कीजिए। हाइपोग्लाइसीमिया भी कॉमन है, डायलिसिस में कई बार होता है, सीवियर होता है और उसकी वजह से कई बार पेशेंट एडमिट हो जाता है। तो पेशेंट जो इंसुलिन ले रहा है बिफोर डायलिसिस, वो न कि टोटली बंद करना है, न कि फुल डोज देना है, वो मॉडिफाई करना है। तो इसलिए वो उस पर ध्यान देना है। पेशेंट का डाइट पैटर्न कैसा है, डायलिसिस पे किस वक्त आता है, सुबह 7 बजे आता है, 11 बजे आता है, उस हिसाब से ये सब इन्फॉर्मेशन नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करके उसका आप डायबिटीज़ का ड्रग्स का डोसेज एडजस्ट कर सकते हैं। देन डायलिसिस रिलेटेड वजह, जैसे एक्सिस रिलेटेड वजह, फिस्टुला ब्लॉक हो रहा है, आपको दिख रहा है फ्लोस कम हो रहा है, अगर उसको जल्दी ध्यान में लाया और इंटरवेंशन किया तो उसकी वजह से वो फेल नहीं होगा, उसको हॉस्पिटलाइजेशन होकर फिर वापस नया बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। द फ्लूइड स्टेटस, इन्फेक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आप देख रहे हैं कोई पेशेंट रेगुलरली हाइपरकैलेमिया लेके आ रहा है, हर रिपोर्ट में हाइपरकैलेमिया है, तो उसका डाइट और किस तरह से उसका पोटेशियम मैनेज करे ये डिस्कस करें, तो हम कई बार ये पेशेंट्स में हॉस्पिटलाइजेशन एंड इवन मॉर्टेलिटी अवॉइड कर सकते हैं।
दूसरा, पेशेंट का जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ रिलेटेड हार्ट डिजीज़ है, जैसे स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, जैसे पेशेंट को इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है, उसके मैनिफेस्टेशंस अभी भी है, तो वो भी बैकग्राउंड में प्रोग्रेस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट एडमिट हो, तो वो डिजीज़ को भूलना नहीं है। पेशेंट का जो कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, उसमें ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना है ताकि उस पर मॉनिटरिंग हो। पेशेंट कोई कंप्लेंट करता है तो जल्द से वो पिकअप हो कि कोई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ वाला पेशेंट पेट में दर्द है, कंप्लेंट कर रहा है, बट अगर हमारे ध्यान में नहीं है कि ये पॉलीसिस्टिक है, 1 साल से डायलिसिस पे हम भूल जाते हैं, तो कई बार हम मिस करते हैं। तो ये सब चीज़ों को भी हमारा सिस्टम कैप्चर करना चाहिए कि ये पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, तो ये सिम्टम इंपॉर्टेंट है। ये हमने जस्ट बात किया। सो एक्सेस रिलेटेड इन्फेक्शन एंड एक्सेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आल्सो लीड टू एडमिशन रेट इन अराउंड 46%। सो फ्लूइड ओवरलोड भी प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट ज़्यादा पानी पी के आता है बार बार ब्रेथलेस होके, और कम निकालेंगे तो भी ओवरलोड होता है, एंड ऑब्वियसली कार्डियक स्ट्रेन की वजह से भी। इन्फेक्शंस कैथेटर रिलेटेड आर वेरी कॉमन, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ टाइम जब पेशेंट फिस्टुला पे होता है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक निमोनियाज आर द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन दीज पेशेंट्स। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अब ये पेशेंट का यूरिन आउटपुट काफ़ी कम होते जाता है, तो कई बार हमारे ध्यान से निकल जाता है कि इनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर पेशेंट 100 ml यूरिन पास करता है दिन में, इसका मतलब नहीं है कि उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। सो कई बार वो सटल सिम्टम्स रहता है, पेशेंट नॉट डूइंग वेल, या डायलिसिस पे राइगर्स आ रहा है, या घर में चिल्स है, and we are not able to find anything. Think about urinary tract infection also, because many of them get admitted because of urinary tract infection also, या polycystic kidney में जैसे मैंने कहा। So assessment के तौर पे हमें क्या करना चाहिए? रेगुलर मंथली चेक। आई फर्मली बिलीव कि हर महीना पेशेंट ने डायलिसिस पैकेज जो हम बोलते हैं करके नेफ्रोलॉजिस्ट को एक बार क्लिनिक में मिलना चाहिए, क्योंकि डायलिसिस पे जब पेशेंट मशीन को लगा हुआ रहता है, हमारा असेसमेंट बराबर नहीं है। जब वो ओपीडी में आता है तो हम बहुत सारी चीज़ें उससे बात कर सकते हैं, उसका पूरा मंथ में क्या था। वी शुड मेक अ हैबिट ऑफ टेलिंग द पेशेंट टू कीप अ डायरी कि लास्ट 1 मंथ में व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स ही हैड, सो दैट उस समय वो नहीं तो याद नहीं कर पाता है, वो प्रॉब्लम्स हमें बताएगा, वो रिपोर्ट्स हम देखेंगे तो हम अच्छा कोरिलेट करके कोई चीज़ जल्दी पकड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो रूल बनाए यूनिट में कि वंस अ मंथ आप नेफ्रोलॉजिस्ट को रिपोर्ट दिखा के मिल के नया प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। इससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकता है। Nephrologists also should see maybe weekly once all the patients in the unit at different times, so that we can keep a watch on many subtle things like dry weight assessment, hypertension and other things. सटल सिम्टम्स, ये जो सटल सिम्टम्स है कि पेशेंट जो कंप्लेन करता है, इसका ट्रेनिंग होना चाहिए टू द नर्सेस एंड टेक्नीशियंस। लाइक हमारे हॉस्पिटल में हमने इस तरह से ट्रेनिंग दिया है और हमने एक सिस्टम बनाया है कि देयर इज़ अ चेक इन नर्स एंड अ चेकआउट नर्स। सो उनका रोल है कि जब पेशेंट आता है, दे हैव टू चेक इन द पेशेंट, सो दे हैव टू आस्क द पेशेंट हाउ दे वर लास्ट 48 आवर्स एंड व्हाट वर द कंप्लेंट्स, एंड इफ दे फाइंड समथिंग विच इज not correct, they immediately make a note of it and inform to the dialysis department doctor कि this patient is saying this. Similarly at checkout, they are supposed to make a note कि last 4 hours में उनको कुछ issue हुआ था ये dialysis में, और वो पहले वाले issue से कुछ correlate होता है, तो they just make a note of it and the dialysis department doctor assesses that and makes a remark कि this patient is having repeated hypoglycemia, this patient is having vomiting on every dialysis, this patient is having hypotension. So it helps in picking up problems earlier. चेंज इन द कार्डियक स्टेटस। सो कई बार हम ये जो पेशेंट्स रेगुलर डायलिसिस पे होते हैं, हम बहुत सारा चीज़ भूल जाते हैं उनका अंडरलाइंग, क्योंकि हम उस पर रेगुलर मॉनिटर नहीं करते, हम डे टू डे ट्रबल शूटिंग करते हैं। बट कुछ चीज़ों का रेगुलर असेसमेंट शुड बी अ प्रोटोकॉल, जैसे वंस अ ईयर ईसीजी इको तो एटलीस्ट करके देखना चाहिए, एंड अगर किसी भी टाइम पे कोई स्टेटस चेंज होता है तब करके देखना चाहिए। सो कार्डियक स्टेटस असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी नो दैट cardiovascular disease is the biggest cause of hospitalization and death in these patients. तो इसका मतलब यही है कि हम डायलिसिस पे आने के बाद ये बाकी सिस्टम्स को भूलना नहीं चाहिए। एंड लैब में अर्ली डिविएशंस आता है, तो कई बार जैसे SGOT SGPT का थोड़ा भी एलिवेशन हुआ इन पेशेंट्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो विच आर द रिपोर्ट्स विच वी नीड टू मॉनिटर रेगुलरली, कि थोड़ा भी डिविएशन आए तो इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द नेफ्रोलॉजिस्ट इमीडिएटली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Why I am saying all this to you is because you are the first point of contact with the patient. पेशेंट को आप हफ्ते में 3 बार देखते हैं, उसका कम्युनिकेशन आपसे ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें आप जल्दी पिकअप करके हमारी नज़र में ला सकते हैं। ट्रीटमेंट, काउंसलिंग
ऑन फूड एंड फ्लूड, ये तो हमेशा एवरी विजिट पे चालू रहना चाहिए, खाली स्टार्ट और रेगुलर नहीं होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए। जिस पेशेंट्स का रिपोर्ट्स में डिविएशन है आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम कई बार गलती करते हैं पेशेंट्स को बोल के कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, बिना जाने कि वो ये तो खाता ही नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फ्रॉम द पेशेंट कि वो क्या खाता है और उसमें क्या उसको नहीं खाना है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डाइटिशियंस एंड इवन टेक्नीशियंस कैन कोलैबोरेट एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि ये पेशेंट का डाइट, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत अलग तरह के डाइट्स है, तो कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज ईटिंग वॉट एंड वॉट करेक्शन दे नीड टू मेक। इससे कॉम्प्लायंस बढ़ता है, बिकॉज हम अगर किसी को बोले ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर वो उनमें से 2-3 चीज़ कर ही नहीं रहा है और खाली एक ही चीज़ नहीं करना है, तो वो ज़्यादा एक्सेप्टेंस होता है कि जब हम उसको कम बार बोलते हैं कि ये मत करो। वी नीड टू टेल देम टू अवॉइड पोटेशियम रिच फूड, बट एट द सेम टाइम हमें उनको बोलना है कि अच्छा प्रोटीन खाना है। डायलिसिस के पहले सीकेडी में हम बोलते हैं 0.6 to 0.8 ग्राम पर किलोग्राम खाना चाहिए, लेकिन हीमोडायलिसिस पे हम बोलते हैं 1.2 ग्राम पर किलोग्राम खाना चाहिए। तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक डबल, मतलब डायलिसिस के पहले पेशेंट जितना प्रोटीन खाता था, डायलिसिस पे उसको उसका डबल खाना है। तो ये चीज़ पेशेंट बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, और इसलिए हम देखते हैं कि डायलिसिस शुरू होने के बाद बहुत जल्दी मैल न्यूट्रिशन सेट इन होता है, एंड मैल न्यूट्रिशन इज अनदर वन बिग रीजन फॉर एडमिशन एंड मॉर्टेलिटी इन डायलिसिस पेशेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट को बार बार याद दिलाना कि किडनी जा चुका है, अभी आप डायलिसिस पे है, तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन किसी काम का नहीं है, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन 1.2 ग्राम खाना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर एक्सेस इवैल्यूएशन जो आप लोग करते रहेंगे रेगुलरली, जब भी आप डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, फ्लो कितना है, इन्फेक्शन का कोई रिस्क है, इस पर ध्यान देते रहना चाहिए, तो वी कैन हेल्प द पेशेंट्स। मॉनिटर फॉर बोन एंड मिनरल डिजीज, ये एक और फैक्टर है, वीक बोन्स, फॉल लीडिंग टू फ्रैक्चर्स विच कॉज हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्जरीज इन दीज पेशेंट्स। सो अगर हम उनका बोन एंड मेटाबॉलिक डिजीज कंट्रोल में रखते हैं तो ये कम होगा। एट द सेम टाइम पेशेंट का स्टैंडिंग बीपी देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन अगर है तो ये आपके यूनिट में तो स्टेबल है, लेकिन नेक्स्ट डे सुबह घर पे बाथरूम में जाने के बाद गिर जाएंगे। सो ये चीज़ें बहुत ध्यान है, इंपॉर्टेंट है पेशेंट को मॉनिटर करना। कार्डियक इवैल्यूएशन जैसे मैंने कहा, स्टे एक्टिव एंड अवॉइड फॉल्स। सो एक्टिविटी इज नोन टू हेल्प द पेशेंट्स मेंटेन अ गुड बोन मास ऑल्सो। सो पेशेंट्स को एंकरेज करना चाहिए कि दे शुड कीप वॉकिंग, रिमेन एक्टिव। जस्ट वो डायलिसिस पे इसका मतलब नहीं कि उनको बिस्तर पकड़ लेना चाहिए। एंड नेवर मिस अ सेशन और मेकअप। सो हम कई बार पेशेंट को बोलते हैं आप डायलिसिस मिस नहीं कर सकते हैं, तो या तो वो बहुत डर डर के लाइफ जीता है, या तो वो गुस्से में कभी बगावत करता है और नहीं आता है। उससे अच्छा है कहना है कि आप बीच में अगर कभी डायलिसिस मिस करते हैं कोई बात नहीं है, बट डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट, यू मे कम 4 hours later, you may come next day morning and we'll reorganize your schedule. If you give him that option, then he's not scared of missing a session and he will make up for it. So isliye it's always better to tell the patient thrice a week, but if you are missing one, try to compensate for it the next day if it is possible. Otherwise we can do it twice a week that time, but usually try and not to miss one dialysis in a week. If you miss one dialysis, make up the next day. And learn the early signs, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। So there are certain things which they say help, जैसे अगर आप ईजा डोज एडजस्ट करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन का डोज एडजस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन अच्छा मेंटेन करते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी अलोन हैज बीन फाउंड टू रिड्यूस 16% mortality in one of the study which I just read in from Taiwan. Similarly, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जिनको मिलता है उनमें भी हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है बिकॉज ऑफ द रिस्क, लेस रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स एंड फॉल्स। मॉनिटरिंग ऑफ वैस्कुलर एक्सेस, अनदर थिंग इज रिकंसिलिएशन ऑफ मेडिसिन्स। अभी आप में से कई लोग हैं जो स्टैंड अलोन डायलिसिस सेंटर में काम करते हैं। अभी पेशेंट को अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो वो कहीं और जाता है हॉस्पिटलाइजेशन होने, और वो फिर आपके यूनिट में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फर्स्ट डे जब आता है तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या मेडिसिन दिया और उसका क्या मेडिसिन चालू था, उसको रिकंसाइल बोलते हैं, इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। हम पेशेंट को डिपार्टमेंट में शेलकेल दे रहे थे, हॉस्पिटल वालों ने उसको फॉस्टेट दिया, नेक्स्ट 2 महीने तक पेशेंट दोनों खा रहे, उसको लगता है वो डॉक्टर का दवाई है, ये डॉक्टर का दवाई। सो ऐसा बहुत मिस्टेक्स हो सकता है, बीपी के मेडिसिन में भी हो सकता है, डायबिटीज़ के मेडिसिन में भी हो सकता है। सो इसकी वजह से बहुत बार रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन होएगा बिकॉज पेशेंट ने डबल डोज खा लिया विदाउट रियलाइजिंग ऑफ द सेम मेडिसिन। So it's very important in standalone centers when the patient is going for the hospitalization somewhere due to a medical problem, और जब वो वापस आता है तो उसका स्टेटस में क्या चेंज हुआ है वो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, और पेशेंट के साथ डिस्कस करके रिकंसाइल करना ज़रूरी है।
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट वी हैव अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द सेंटर ऑफ द चेंजेस दैट हैव बीन मेड. So this will help in further problems. Thank you.